Hello everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub. Today we will be taking our second lecture on science and tech, and today I have decided to take this particular lecture on based on scientific terms in news. The purpose of taking this particular series of lecture is to familiarize you with all those topics of science tech that were in news since the past 1 year, like from 2023 to you can call it like March 2024. We will be covering those news that will be like that were those terms which were in news like from May or June 2023 to 2024 till the day of your examination, like 1 month before the examination. So the first thing I want to make you clear is we will broadly categorize all these topics into certain segments, like science and tech is particularly divided into 7 to 8 parts from where they are asking the questions. Okay, all these are independent topics, although like yesterday also we have taken, like there is something called energy and transport, energy, fuels and transport. Second one is electricity, with a basic emphasis on semiconductors. Then there is biotech. Then there is nanotech also, nanotechnology. Then there is robotics. Then comes your IR 4.0, which also incorporates artificial intelligence, AI, and there are many components to it, like big data is there, and then your metaverse is there. All those topics are covered under IR 4.0. Then comes your defense technology section. Then comes the space tech. And last one is, you can call it miscellaneous. In miscellaneous, we will be covering some independent topics, like a particular scientific term was in news. Okay, it might be related to anything that was in news or in current affairs. So all those topics were independently categorized under this miscellaneous section. Otherwise, the broader topics are these ones only. So let's begin our lecture. The basic purpose is, to draw this flowchart is to just make you aware that these are the particular segments. See, because in science and tech, there is nothing called continuity. There is nothing called like chronology as we are following in polity or in, let's say, history. Because whenever if I'm teaching history, I will be starting from ancient, then comes the medieval, then comes the modern, and along with that, I have to like go with the flow of the year chronology. But in science tech, all are independent topics. But for your मतलब to make you easily understand, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए सारे टॉपिक्स को हम कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज में डाल के लेके चलते हैं. बट स्टिल आई हैव मेड अ फ्लो चार्ट, मतलब आई हैव मेड अ दिस स्लाइड शो बेस्ड ऑन सम इंडिपेंडेंट टॉपिक्स. तो अभी हम इनको लेके चलेंगे. लाइक दिस इज द पेम्बा इफेक्ट. This Pemba effect, this term was in news. It was covered by Hindu also. अच्छा, फर्स्ट आपको एक चीज थोड़ा ध्यान रखनी है कि सोर्सेस क्या होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देयर इज अ टाइम बाउंडेशन ऑल्सो, और सारे टॉपिक्स तो हम पूरे साल की कोशिश करेंगे जो बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट उनको कवर कर लें. बट एज यू नो, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है. तो आपके पास भी एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए पढ़ने का, और साइंस टेक के लिए द हिंदू से अच्छा कोई सोर्स नहीं है. देयर आर ओनली 2 न्यूज़पेपर व्हिच यू कैन रिफर व्हाइल प्रिपेयरिंग your science and tech section. One is the Hindu and the other one is Indian Express. और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह कवर करना है तो बहुत सारे पेपर कवर कर सकते हैं. लेकिन हिंदू जो है वो हाईली इंक्लूसिव और होलिस्टिक है, सब कुछ कवर कर लेता है. और साइंस टेक से रिलेटेड कोई टॉपिक न्यूज में रहा भी, एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि वो आपके द हिंदू से ही आया होगा. ठीक है, चाहे मेंस में हो चाहे प्री में भी हो. डायरेक्टली मतलब एडिटोरियल के आर्टिकल्स को उन्होंने मेंस में पूछा है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेम्बा इफेक्ट है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि द टर्म पेम्बा इफेक्ट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो आपको बिल्कुल पेम्बा सुन के तो नाम ही बिल्कुल होता है कि क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, कि रोबोटिक्स है. आपको नहीं, बिल्कुल हवा ही नहीं लगेगी अनलेस और अनटिल आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ये किससे रिलेट करता है. और इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा होगा. जैसे हो सकता है पेम्बा इफेक्ट के बारे में हो कि करेंटली लाइक इट डील्स विद सेमीकंडक्टर, या इट डील्स विद नैनो टेक्नोलॉजी, या पेम्बा इफेक्ट जो है एक रोबोटिक्स का हिस्सा या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जबकि इनमें से कुछ भी नहीं है, ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करता है. तो पेम्बा इफेक्ट होता क्या है? एक तंजानियन स्टूडेंट हुआ था, इरास्तो पेम्बा.
ठीक है, एम ऑब्वियस सी बात है साइलेंट रहेगा यहाँ पे। रास्तों पेम्बा था, उसने 1969 के आसपास इस फेनोमेनन को, ये एक फिजिकल फेनोमेनन होता है, और ये फेनोमेना क्या है कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गर्म पानी है वो बहुत ही जल्दी फ्रीज हो जाता है बजाय कि ठंडे पानी के, जबकि ऐसी मान्यता है, जैसे ऐसा माना जाता है कि कोई चीज ऑलरेडी एक रूम टेम्परेचर पे है तो उसको सॉलिडिफाई करना ज्यादा आसान होता है। एक गर्म है तो आपके दिमाग में ही परसेप्शन चलता है ना, कोई चीज गर्म है तो पहले वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएगी, फिर वो ठंडी होकर फ्रीजिंग पॉइंट पे जाएगी, जबकि वाटर के केस में ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वाटर का आपको पता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला उसका एक इशू है, डेंसिटी वाला। ठीक है, तो पेम्बा इफेक्ट इज बेसिकली डीलिंग विद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वो ये कहता है आपका कि जो हॉट वाटर हो, जो गर्म पानी होता है, वो बहुत ही जल्दी फ्रीज होता है बजाय के एक रूम टेम्परेचर के पानी के। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग इन दिस पेम्बा इफेक्ट। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से डील करता है, ये फिजिकल फेनोमेना से डील करता है। तो बस इतना ही एक लाइन में आएगा अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में जैसे मैंने आपसे कहा था कि साइंस एंड टेक इज ऑल अबाउट 40% इंफॉर्मेशन, 40% ऑब्जर्वेशन एंड 20% ऑफ योर कॉमन सेंस। तो यहाँ कॉमन सेंस नहीं लग रहा है आपको, बस यहाँ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ऑब्जर्वेंट ये होना चाहिए कि द हिंदू में अगर ये आया है तो आपकी नजर पड़ जाए, या अगर आपने कोई क्लास अटेंड की है, यहाँ की अटेंड की है, या जो भी आपने सोर्स रिफर किया है, आपने बस ऑब्जर्वेंट होकर नजर मार ली कि हाँ भैया ये टर्म था, ये आया था, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बस ऑप्शन देख के आप टिक मार लोगे, आपको इसको वहां एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इट वाज नेम्ड आफ्टर, एज वी ऑलरेडी नो, फॉर मेकिंग सर्टेन क्यूरियस ऑब्जर्वेशन। द इफेक्ट वाज दैट हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर इन सिमिलर कंडीशन। ठीक है, यानी सामान्य रूप से अगर दो कंडीशन रखी जाएंगी, एक गर्म पानी रखा है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है, तो दोनों में से सॉलिडिफाई कौन सा होगा, मतलब दोनों में से कंडेंस पहले कौन सा होगा, तो दैट इज द हॉट वाटर। बस पेम्बा इफेक्ट में इतना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इंफॉर्मेशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, जो भी आपका मन करे, अदरवाइज आप इसको सिंपल सा देख चुके हैं। वही सब एक्सप्लेनेशन है, लाइक रिसर्चर्स हैव कंडक्टेड न्यूमरस एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द कॉजेज, और सबसे बड़ी बात है कॉजेज भी नहीं क्लियर हैं, उनको आज तक ये पता नहीं चल पाया है। ठीक है, कि व्हाट आर द रीजंस, तो उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए हैं। उन्होंने एक ये क्या है, वन कॉज दे हैव पोस्टेड इज दैट द माइक्रो बबल्स लेफ्ट सस्पेंडेड इन द वाटर दैट हैव बीन हीटेड वाइल बॉइलिंग। उनका ये कहना था जब आप पानी को गर्म करते हो उसमें कुछ माइक्रो बबल बन जाते हैं, एंड दे आर फैसिलिटेटिंग दिस पर्टिकुलर कंडेंसेशन ऑफ वाटर। एक प्रोबेबल कॉज ये दिया था। एक उन्होंने ये दिया था कि इवेपोरेशन, एज वार्मर वाटर इवेपोरेट्स मोर, इट ऑल्सो टेक्स अवे सम हीट। इवेपोरेशन इनहेरेंटली इज अ एंडोथर्मिक व्हिच इज नो that cools your skin, both the convection and accelerated heat transfer. मतलब whatever the thing about that, researchers were simply trying to explain this Pemba effect, but till now no particular explanation has been provided to this Pemba effect. बस उन्होंने नाम देके छोड़ दिया कि हाँ Pemba effect जैसी चीज है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। Now moving on to our second topic, that is metagenomics. कल मैंने आपको बताया था 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एरियल मेटाजेनोमिक्स पे, तो मैंने इसको ब्रेक करके आपको बताया था कि एरियल का मतलब होता है हवा, हवा से रिलेटेड, और मेटाजेनोमिक्स में जेनोमिक्स को पकड़ लीजिए, इट इज रिलेटेड समथिंग टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनोम या जीन से रिलेट करता है। तो ये एरियल मेटाजेनोमिक्स कहां से आता है, ये मेटाजेनोमिक्स से है। तो अगर इन्होंने 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया एरियल मेटाजेनोमिक्स पे, तो ऑब्वियस सी बात है अब वो नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है मेटाजेनोमिक्स पे पूछ लिया, घुमा फिरा के कुछ और पूछ ले, तो पता होना चाहिए ना मेटाजेनोमिक्स है क्या। मेटाजेनोमिक्स में दो वर्ड आते हैं, एक है जेनोमिक्स और एक है मेटा। तो जेनोमिक्स आपको पता है डीलिंग विद जीन्स, जीन्स का मतलब ही वही डीएनए से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू योर बायोटेक और समथिंग रिलेटेड टू योर बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को दो पार्ट में तोड़ दें, दैट इज द मेटा एंड द जेनोमिक्स, तो यहां पर मतलब क्या निकलता है, मेटा का मतलब क्या होता है, आपने बार बार अगर आपने एथिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, आपने थोड़ा सा फिलोसफी के आप स्टूडेंट होंगे, तो आपको पता होगा मेटा इज समथिंग बियॉन्ड द यूनिवर्स। ठीक है, मेटा साइंस, मेटा फिजिक्स, मेटा एथिक्स। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज दैट इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, दैट इज बियॉन्ड द यूनिवर्स, समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो मेटाजेनोमिक्स में भी मतलब ये जो अभी तक स्टैब्लिश चीजें उनसे बाहर, उनसे परे, मेटा के लिए अगर मैं आसान वर्ड यूज करना चाहूं तो परे होता है, ब्रह्मांड से परे, दुनिया से परे, दैट काइंड ऑफ द थिंग। ठीक है, तो ब्रेक कर लिया तो थोड़ा तो आसान हो गया ना कि जीन से रिलेटेड लेकिन परे, हमारी समझ के परे। तो क्या है ये परे, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। अब देखिए कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, माइक्रोब ऐसे वर्ड आते हैं तो उन पर बिल्कुल गिद्ध की नजर रखिए, क्योंकि यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्वेश्चन पूछे, इन्होंने वायरस, बैक्टीरिया, एल्जाई, फंगस, इतने मजेदार क्वेश्चन करंट अफेयर में इन्होंने पूछे हैं। लाइक देयर इज अ लेक इन वेस्टर्न इंडिया, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक लेक है जो कि क्रेटर लेक है, बेसिकली एक क्रेटर फॉर्मेशन था, एक एस्टेरॉइड का इंपैक्ट हुआ तो उसकी वजह से क्रेटर बन गया, बाद में पानी भर गया तो एक तालाब बन गया। 2021 के आसपास उस लेक का पानी सडनली चेंज हो गया था, लाल कलर का पानी हो गया था। अगर आप प्राचीन काल या आदिम युग में रहते होते तो ऐसे चीजों में क्या होता था, लोग पूजा पाठ शुरू कर देते थे, क्या कोई जादुई शक्ति हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि पानी बदल गया। लेकिन क्योंकि आप साइंटिफिक अप्रोच के लोग हैं, ठीक है, आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, तो और अगर आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेटर
एज एडमिनिस्ट्रेटर वहां पोस्टेड हैं, ठीक है, और आपके आसपास के लोग कहना शुरू कर दें कि फलाने नील नदी में या तालाब में जादू हो गया है, पानी लाल हो गया है, लोग पूजा पाठ तंत्र मंत्र वहां शुरू कर दें, तो आप तो पढ़े लिखे हैं, मतलब सीधी सी बात है, आपकी साइंटिफिक अप्रोच है, तो आपको पता होगा कुछ ना कुछ तो रीजन होगा उसका। तो हुआ क्या था, वहां कुछ माइक्रोब्स थे, ऑब्वियस सी बात है, एल्जाई था बेसिकली, एक एल्जाई फॉर्मेशन हुई थी, जिसकी एल्जाई आपको पता है ये पानी पे एल्गाई ब्लूम होता है, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एल्गाई फॉर्मेशन हो जाती है, कभी कभी पानी का रंग हरा हो सकता है, नीला हो सकता है, लाल हो सकता है। तो जो महाराष्ट्र का लोनार लेक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वहां एल्गाई एक्टिविटी की वजह से, एल्गाई ब्लूम की वजह से उस लेक का पानी सडनली पिंकिश हो गया था, ठीक है, ये भी न्यूज में रहा था। अब तो दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एल्गाई की वजह से हुआ था। और आई एम नॉट वेरी श्योर बट इन यूपीएससी और यूपीपीएससी किसी ने प्री में इस पे क्वेश्चन पूछा था, और दैट ईयर दैट पर्टिकुलर टॉपिक वाज वेरी रेलिवेंट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है माइक्रोब, फंगल एक्टिविटी, ठीक है, एल्गाई एक्टिविटी, वायरल एक्टिविटी, इनकी वजह से अगर कोई भी इंपैक्टफुल चीज होती है और न्यूज में है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो ये मेटाजेनोमिक्स भी कुछ यही है। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल लिविंग एनवायरनमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स माइक्रोब communities in which they usually exist। यानी कुल मिला के जो मेटाजेनोमिक्स है किसी से डील करती है, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब समझते हैं ना, छोटे छोटे जीवाश्म या जीवाणु करके उसके लिए हिंदी में वर्ड होता है, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, इन देयर नेचुरल लिविंग कंडीशन। अब देखिए यूपीएससी यहां से क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो सिर्फ नेचुरली पाए जाते हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि माइक्रोब्स मे बी फाउंड इनसाइड योर बॉडी ऑल्सो। क्या आपको पता है आपकी बॉडी में कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, किसी फॉर्म में। माइक्रोब मतलब क्या है, कुछ छोटे से ऐसे जीव जो आपको नॉर्मली नेकेड आई से नजर में नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप आपको यूज करना पड़ेगा। माइक्रो लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है मेटाजेनोमिक्स की, the study examines the genomic composition of the entire organism including each of the microbes that exist within it। अब इसमें आगे लिखा है it facilitates the direct sequencing of patient samples removing the need for prior knowledge of the infectious agent। यानी कहीं ना कहीं आपका डिजीजेस वगैरह से भी डील कर रहा है, मतलब डॉक्टर्स वगैरह से भी, मतलब वो लोग थोड़ा रिसर्चर्स वहां पे हेल्प ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अ सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ अराउंड 4000 to 5000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि 1 ग्राम अगर आप मिट्टी उठाते हैं तो उसमें 4000 से 5000 अलग अलग, 4000 5000 माइक्रोब्स नहीं कह रहा हूं मैं, 4000 या 5000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। आप इमेजिन कर सकते हैं 1 ग्राम ऑफ सॉइल में 4000 से 5000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। आपको पता है होमो सैपियंस अपने आप में एक स्पीसीज है, जैसे मैं मनुष्य हूं तो मैं किस जेनस फैमिली में आऊंगा, होमो सैपियंस में आऊंगा। यहाँ जेनस होता है, यहाँ पे फैमिली होती है, सब बायो में क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं हूं, आप हैं, हम लोग किस एक पर्टिकुलर जेनस से बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये एक स्पीसीज है। उसी तरह एक जानवर हो सकता है, किसी मैमिलिया ग्रुप का हो सकता है, किसी और ग्रुप का हो सकता है, ये डिफरेंट स्पीसीज है। आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना था, 1 ग्राम ऑफ सॉइल में 4000 से 5000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। यानी इस स्टेटमेंट से एक लाइन ये निकल के आती है कि माइक्रोब्स दे आर लिविंग अंडर द नेचुरल कंडीशन, सॉइल में भी पाए जाते हैं। वाइल द ह्यूमन इंटेस्टाइन्स कंसिस्ट ऑफ, अगर ये गंदा हो रहा है मैं इसको हटा देता हूं ताकि क्लियर रहे, बस कीवर्ड्स ये ध्यान रखिए। ह्यूमन इंटेस्टाइन कंटेन्स द 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, सब क्या है, माइक्रोब ही तो है एक तरह के, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम ऑफ सेल में 4000 से 5000 स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स हैं, तो आपकी जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होती आंतें होती हैं, ठीक है, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जब स्टमक वगैरह से जो आपका जो भी आपने फूड या कुछ भी कंजप्शन किया है, वो फूड वगैरह में जब जो उसके डाइजेस्टिव जूसेस जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे कुछ माइक्रो बैक्टीरियल एक्टिविटीज भी होती हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके गट्स में, आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो इस फूड के साथ रिएक्शन करते हैं और उसमें से और अच्छा सा न्यूट्रिएंट को सोखते हैं। ये बेसिकली पैरासाइट की तरह काम करते हैं। वो आपकी बॉडी में रह के सर्वाइव कर रहे होते हैं, आप ही द्वारा कंज्यूम किए गए न्यूट्रिएंट्स को खा रहे होते हैं, और इसी बहाने उस फूड का भी डिकम्पोजिशन हो रहा होता है ताकि आपकी बॉडी भी अच्छे से उनको एब्जॉर्ब कर ले। और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होते हैं, वहां भी माइक्रोब्स आपको मिलेंगे, और फिर वो आपको एज अ स्टूल वो पास हो जाता है रेक्टम के थ्रू, ठीक है। यानी कि कुल मिला के जो माइक्रोब्स हैं, दे आर फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट कॉल्ड द सॉइल एंड आल्सो इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं या आपकी ह्यूमन बॉडी में भी, दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो
मेटाजेनोमिक्स इसी की स्टडी होता है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, चाहे नेचुरल इन्वायरमेंट में चाहे ह्यूमन बॉडी में है, उनका जो भी मतलब जेनेटिक कंपोजिशन है, ठीक है, उसमें किस तरह के वायरस पाए जा रहे हैं, किस तरह के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, जब आपको उनके बारे में पता होगा, जब उनके बारे में आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो उसके प्रॉस कौन जान पाओगे। तो कल को अगर आपको कोई वैक्सीन बनानी है, कोई भी ऐसा एंटीबैक्टीरियल कोई भी मतलब कोई भी डोज डेवलप करना है, तो उनके बारे में पहले हमको उनकी जेनेटिक कंपोजिशन पता होनी चाहिए ना, तो रिसर्चर्स के लिए वहां पे हेल्पफुल हो जाता है। तो मेटाजेनोमिक्स इज बेसिकली डीलिंग विद द जीन्स और द जेनोमिक्स ऑफ द माइक्रोब्स और द बैक्टीरिया। एक सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है एरियल मेटाजेनोमिक्स। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मेटाजेनोमिक्स आप समझ ही चुके हो, ठीक है, द स्टडी ऑफ द जीन्स ऑफ द माइक्रोब्स और बैक्टीरिया मतलब एक सब क्लासिफिकेशन माइक्रोब के अंडर में। तो एरियल क्या होगा, समथिंग रिलेटेड टू एयर, यानी हवा में पाए जाने वाले। तो एरियल मेटाजेनोमिक्स टिपिकली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए आरएनए आपने बायोलॉजी में छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा, या फिर जब आगे हम बायोटेक पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इसको देख लेंगे कि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, वायरस आपका क्या होता है, आरएनए होता है कि डीएनए कंपोजिशन का होता है। मतलब एक सिंपल सी चीज है, आरएनए मतलब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए आपने देखा होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके बना होता है, ठीक है। तो वही सब है, प्रोटीन किसमें होता है किसमें नहीं होता है, सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। हर चीज इलेबरेट करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ कीवर्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एरियल मेटाजेनोमिक्स टिपिकली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द एयर। अभी मैंने क्या कहा था, एरियल वर्ड आया है तो मतलब कलेक्टेड फ्रॉम द एयर, यूजुअली इन फॉर्म ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स और एरोजोल्स, ठीक है। अब आपने एक वर्ड यहां पे देखा एरोजोल्स। तो कई बार क्या होता है, हम जब कुछ पढ़ रहे हो, जैसे आप हिंदी में आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं, या आपने किसी भी वेबसाइट देखी, आप लोग प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे, कोई स्टिक नहीं होता है कि मुझे पर्टिकुलर चैनल फॉलो करना है, एक स्टडी मटेरियल। हम लोग बिल्कुल वैरागी टाइप के लोग होते हैं, जहां से जो मिल जाए, जहां से ज्ञान मिल जाए वहां से ले लीजिए, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी सोर्स आपने रिफर किया होगा, कभी ना कभी आपकी नजर यहां पे गई होगी। एक वर्ड होता है एरोजोल, ठीक है। तो एरोजोल में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो एरोजोल होता क्या है बेसिकली, एरोजोल में आप देखो AERO लगा है, कहीं पर भी एरो एयर जैसा वर्ड है तो समथिंग रिलेटेड टू एयर, ठीक है। और सोल्स मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, कोलाइडर सॉल्यूशंस होते हैं, जिनको हम सॉल्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब कई तरह के मतलब उनका कंपोजिशन हो, एलिमेंट्स का कंपोजिशन हो, एक तरह का सॉल्यूशन बनता है, जैसे नींबू पानी, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल शेविंग के लिए आप लोग फोम यूज करते हो, ये कोलाइड होता है, ठीक है। आप कभी भी बार्बर के वहां जाते हैं तो आप देखते नहीं है कि वो एक उसके पास वाटर का वो होता है कैन टाइप का, उससे वो स्प्रे करता है, वो भी एक तरह का कोलाइड है। जहां पे जो दो मीडियम होते हैं, एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम होता है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स को एयर में इन्फ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा झाग सा पानी सा, मतलब वेपर टाइप का पानी आपके चेहरे पे और बालों पे पड़ता है। तो ये सब सॉल्ट्स हैं बेसिकली। तो एरोजोल भी होता है हवा में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जब आप एरोजोल्स को पढ़िएगा, चाहे वो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़िए, चाहे करंट अफेयर में पढ़िए, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि एरोजोल इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज द स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। एरोजोल बेसिकली होते क्या है, इनको हम आगे जब भी ज्योग्राफी पे लेक्चर लेंगे या फिर फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर पे लेंगे, वहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एरोजोल के इंपैक्ट क्या होते हैं। एरोजोल जो होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है क्या क्लाइमेट चेंज में उसका कोई रोल है, ठीक है, या फिर एरोजोल एक पॉल्यूटेंट है या आपके लिए यूजफुल है। जैसे एक गैस होती है, उसके बारे में बार बार नाम आता रहता है, ओजोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओजोन गैस है वो आपके लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसका नाम सुनते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, गंदी सी जहरीली सी वायु है, दूषित सी वायु है कार्बन डाइऑक्साइड जो है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या आपका सर्वाइवल संभव है? आपके लिए वो खतरनाक है, आपके लिए वो पॉल्यूटेंट है, लेकिन पेड़ों के लिए तो वही अमृत है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स में प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, आपका ऑक्सीजन बनाते हैं वो। अब मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। वाटर वहां भी जनरेट होता है, 6CO2 + 6H2O will give rise to C6H12O6 + O2, ठीक है। यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन जो कि फूड की फॉर्म में आप प्लांट से लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना वो खुद बनाते हैं, तो ग्लूकोज ही तो बना रहे हैं टेक्निकली। तो द रिएक्शन इज 6CO2, वहां छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, + 6H2O will give rise to C6H12O6 + 6O2,
तो आप देखो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है और यहाँ ऑक्सीजन बन रही है। ऑक्सीजन आपके लिए प्राणदायी है, आपके लिए मतलब जीवनदायी है, आपको जीवन देती है, लेकिन प्लांट्स उसे कंज्यूम नहीं करते, प्लांट्स उसको रिलीज कर रहे हैं और आप उसे कंज्यूम करो। तो आपके सर्वाइवल के लिए जैसे प्लांट नेसेसरी है, वैसे प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए CO2 बहुत जरूरी है। एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे ग्लूकोज बनाएंगे, आपका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। यानी कोई गैस अगर आपके लिए पॉल्यूटेंट है तो जरूरी नहीं दूसरी स्पीसीज के लिए भी पॉल्यूटेंट हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई गैस हमारे लिए यूजफुल भी होती है तो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो जाती है। जैसे मैंने बात की अभी ओजोन की, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है एक टॉपिक से 50 टॉपिक आपको मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मेटाजेनोमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है सिंपल सी लाइन डाल दी जाए कहीं पे कि ओजोन इज यूजफुल फॉर यू कि हार्मफुल। अब आपने कहीं पे पढ़ लिया कि ओजोन डिप्लेशन एक वर्ड आता है बार बार कि हमारी जो पृथ्वी, पहले ओजोन पे आते हैं फिर मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, आपको पता है अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है आपका, उसको हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया है, उसको हमने 4 लेयर्स में बांट रखा है। यानी एटमॉस्फेयर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4। वो ज्यादा बेटर है, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज योर अर्थ, तो इसके ऊपर जो पहला एयर का लेयर है जिसकी लेंथ जो है अराउंड 16 to 18 किलोमीटर है। तो मैं अभी आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर जो मेरे लिए रेलेवेंट है मैं वहां से लेना चाहता हूं, ठीक है। इस रीजन को जैसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। यहां पे सारी लाइफ सस्टेनिंग गैसेस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और साथ साथ में हार्मफुल गैसेस भी पाई जाती हैं क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। अगर कोई गैस डेंस है यानी कि भारी है, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी लाइटर चीज होगी वो हवा में ऊपर उठेगी, अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो हमेशा ऊपर की ओर उठेगी, और कोई भी चीज भारी होगी तो वो न्नीचे बैठेगी। तो अगर मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर रूम में 5 तरह की गैसें हैं, कॉमन सेंस से सोचिएगा, ठीक है। एक जो है उसकी डेंसिटी जो है, मतलब समझाने के लिए न्यूमेरिकल नंबर ले लेते हैं, एक गैस की डेंसिटी 2 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, चौथे की 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है जिनकी डेंसिटी 3, 4, 5 है वो नीचे की तरफ बैठेंगी, और जो जिनकी डेंसिटी 1 और 2 है वो ऊपर की ओर उठेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम ये लाइटर गैसेज में आती है, इनकी डेंसिटी कम है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर कम है, तो ये गैसेज हमेशा एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर उठेंगी। इसलिए आपने देखा होगा जो बच्चों के लिए गुब्बारे होते हैं, या कल ही मैं बात कर रहा था जो प्रोजेक्ट लून था उसमें जो उन्होंने बैलून्स यूज किए थे इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए, गूगल वगैरह ने, जिनका कॉन्टेक्ट हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में, कल हमने डिस्कस किया था ना क्लास में, ठीक है। तो वो जो हीलियम फिल्ड बैलून्स थे वो स्ट्रेटोस्फीयर में तैर रहे हैं। अब ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो लेयर आता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक लेयर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। और इसके भी ऊपर एक लेयर आता है, इसको हम कई बार एक्सोस्फीयर कह देते हैं, और एक्सोस्फीयर के भी कई लेयर्स होती है, जैसे आइनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको एक्सोस्फीयर कह रहा हूं, एक्सोस्फीयर मतलब बिल्कुल बाहर का, ठीक है, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में बांट सकता हूं। एक हो गया आपका आयनोस्फीयर, और इसके भी ऊपर वाला आपका हो जाता है थर्मोस्फीयर। तो एक सिंपल सी चीज है, आपने देख लिया कि एटमॉस्फेयर को हम 4-5 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, 4-5 लेयर्स में तोड़ सकते हैं। तो जो ट्रोपोस्फियर है पहली बात तो सबसे निचला लेयर होता है, ठीक है, जहां पर आपके प्लेन्स उड़ते हैं, यहां पर आपके बैलून्स उड़ते हैं, यहां पे सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 8-10 तरह की गैसें, मतलब आपको पता है कितनी सारी गैसेस पाई जाती हैं, 78% ऑफ योर एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 होता है, एटॉमिक मास उसका होता है 14 हो जाता है, यानी कि समझ में आ गया। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका 8 जाएगा, एटॉमिक मास आपका 16 जाएगा, यानी कंपैरेटिवली ये नाइट्रोजन से ज्यादा डेंसर है। तो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक जगह है तो नीचे कौन बैठेगी, ऑक्सीजन बैठेगी, नाइट्रोजन थोड़ी सी ऊपर होगी। यही तो था ना कि जो डेंसर गैसेस हैं वो नीचे बैठती हैं और लाइटर गैसेस हमेशा ऊपर उठती हैं। और वही अगर मैं हाइड्रोजन हीलियम की बातें करूं तो जिसने नहीं भी पढ़ा इतना तो आप समझ ही गए ना, लाइटर गैसेस हमेशा ऊपर उठेंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रोपोस्फियर को हम लाइफ सस्टेनिंग गैसेस, या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया मतलब पूरे ब्रह्मांड, मतलब हमारी पृथ्वी पे जितनी तरह की गैसें पाई जाती है, लमसम आपको सारी गैसें यहाँ मिल जाएंगी जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी भी हैं, और उनमें से कुछ गैसें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है। फिर ऊपर जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होने लगेगी। उसका रीजन क्या है कि सारी डेंसर गैसें तो नीचे बैठ गई, तो हल्की हल्की गैसें ऊपर मिलेंगी। जब डेंसिटी ऊपर की कम होगी तो, अच्छा, डेंसिटी से रिलेटेड एक चीज और याद रखिएगा कि कोई चीज अगर ज्यादा डेंस है, स्पेशली एटमॉस्फेयर में अगर गैसेज में डेंसिटी ज्यादा है तो उनकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। कोई चीज भारी है, जैसे कि आप तो ज्यादा कहानी नहीं बता सकता हूं मैं आपको डेप्थ में कि लिक्विड वगैरह पे चला जाऊं फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए कि कोई चीज अगर डेंसर है, मतलब वहां पर अगर उसके जो कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑफ एक्सट्रीम हाई डेंसिटी, तो इनकी रेडिएशन एब्जॉर्बिंग पावर, हीट एब्जॉर्बिंग पावर हमेशा ज्यादा होगी। और कोई चीज अगर लेस डेंसर है, ठीक है, लाइटर है, तो वो उतनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एक सिंपल सा आप ऐसे समझिए, 2 बर्तन लीजिए, एक में आप
एक गैस भरिए जिसकी डेंसिटी कम है, दूसरे में ऐसी गैस भरिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और दोनों पे आप अल्ट्रावायलेट रेज या कोई इंफ्रारेड रेज या कोई ऐसी रेज डालिए जिससे हीट जनरेट होती है, ठीक है, उनको गर्म करने के लिए। तो जो हाई डेंसिटी वाली गैस है वो बहुत जल्दी गर्म होगी और बहुत देर तक गर्म रहेगी, ठीक है। और जो लाइट डेंसिटी वाली है उनमें गर्मी जो होती है उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने आपसे कहा एटमॉस्फेयर में कितनी गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो रिमेनिंग आपका 1-2% बचता है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गॉन होती है, क्रिप्टन, जियोन, मतलब दुनिया भर की गैसें आपको जितनी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, जो रिलीज हो जाती हैं, सब आपको गैसें उतने में 1-2% में मिल जाएंगी, ठीक है। 0.002, 0.003, 0.98% इस फॉर्म में मिलती हैं। लेकिन कुल मिला ये सारी गैसें आपके ट्रोपोस्फियर में रहती हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात कहूँ एक गैस है आपकी ओजोन, अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन गैस जो है वो किस स्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, या ओजोन गैस आपके सर्वाइवल के लिए अच्छी है या बुरी है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस आपके सर्वाइवल के लिए पहली चीज तो बहुत क्रूशियल है, लेकिन थोड़ी सी ये हार्मफुल भी है। रीजन क्या है, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज प्लेस्ड। ओजोन जो है 90% ऑफ ओजोन जो है, याद रखिएगा, ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और यहां पर ये ओजोन एक लेयर बनाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। और यहां इसका काम क्या होता है कि सन से जो सनलाइट आ रही है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये ओजोन उसको रोक देती है, बैरियर देती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती पे पड़ी तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, 50 तरह की स्किन डिजीज होंगे, ठीक है, सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन इसलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन एग्जिस्टेंस या बहुत सी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि सन से आने वाली जो रेज होती है इसमें बहुत सारे मतलब कंपोनेंट होते हैं, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में, या कभी जाएंगे वहां तो पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें एक कंपोनेंट होता है आपका अल्ट्रावायलेट रेस का, तो ओजोन हर तरह के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। पहली चीज तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बहुत यूजफुल हो गई, यहां पे ओजोन आ गई, तो आपको लग रहा है ओजोन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यही 10% ऑफ ओजोन, जैसे 100% टोटल होता है, तो 90% ऑफ द ओजोन इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, बट 10% ऑफ द ओजोन इट इज फाउंड इन ट्रोपोस्फीयर। 90% ऑफ ओजोन कहां मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी, और जो 10% ऑफ ओजोन है वो आपको ट्रोपोस्फीयर में मिलेगी। ट्रोपोस्फीयर में जब ओजोन एग्जिस्ट करती है तो याद रखिएगा वो ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, वहां पे जिन्होंने पढ़ा है देखिए उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो न्यूवाइस हैं, जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, बिगिनर हैं, तो उन्होंने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, ठीक है, उनके लिए बस ये है, ठीक है, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर मैं कह रहा हूं कि ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में है तो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है उसके लिए आपको जानना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां देखिए क्या है, ग्रीन हाउस से मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है वो गैसेस जो आपके ट्रोपोस्फियर में या एटमॉस्फेयर के लोएस्ट स्ट्रेटा में पाई जाती हैं और वो वातावरण को गर्म करती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दे विल बी हाई डेंसिटी गैसेस, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप हाई डेंस गैस, लो डेंस गैस को एक साथ रखेंगे तो हाई डेंसिटी गैसेस नीचे बैठेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, दोनों को साथ में रख दीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, तो नीचे की ओर बैठेगा। भले ही कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 था, ऑक्सीजन का इधर 8 था, तो कंपोजिशन से तो डेंस हो गई ना CO2, तो CO2 हमेशा नीचे बैठेगी, ऑक्सीजन कंपैरेटिवली थोड़ी सी लाइटर है, ठीक है। तो CO2 हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कोई भी ऐसी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड की कोई भी गैस है, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस बन जाती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग comes under the categorization of greenhouse gas, इसमें आपकी मीथेन भी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आते हैं, ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन एक वर्ड चला है पीए करके, वो भी आता है, और ये सारी गैसें आपकी आती हैं। तो याद रखिएगा ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है, 6 से 7 गैसें हैं इसमें, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, देन कम्स योर मीथेन, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बहुत सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है जो आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में रिलीज होती है, ठीक है। तो ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैस हैं। इनका इंपैक्ट क्या होता है, ये आपके वातावरण को गर्म करती हैं। ये यूपीएससी ने कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द इंपैक्ट और द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैस है, हाई डेंसिटी की गैसेस जो बेसिकली भारी होती है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होंगी। उनकी प्रेजेंस से क्या होता है कि सनलाइट जो आप पे पड़ती है और अर्थ ग्राउंड पे टकरा के जब रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो मीनवाइल ये जो ग्रीन हाउस गैसेस आपके ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट हैं, ये यहाँ से बहुत सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हीट रेडिएशन को। अब अगर आपके सर्वाइवल की वजह से या किसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ियां चलाते हैं, तो गाड़ियों में कौन सा पॉल्यूशन निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड टाइप की गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे निकलता है। आप कोयला जला रहे हैं, आप लकड़ी जला रहे हैं, आप किसी भी चीज को जलाते हैं तो पहली जहरीली गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकती है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा खतरनाक कौन सी गैस है,
और दोनों गैसों का सोर्स एक ही होता है, कुछ अलग अलग सोर्स से नहीं आती। अगर आप किसी चीज का कंप्लीट कंबशन करते हैं, यानी किसी चीज को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से अच्छे से जलाते हैं इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो जो गैस निकलेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा कार्बन से जुड़ेगा, तभी तो CO2 बनेगा। लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन कर रहे हैं, इफ यू आर बर्निंग समथिंग इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO और इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में किसी को जला रहे हैं, तो जो गैस निकल रही वो है CO2, लेकिन लिमिटेड सप्लाई में जलाएंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन यहां कम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा कम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। दोनों ही गैसें जहरीली हैं, लेकिन इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ज्यादा आपके लिए जहरीली है। ग्रीन हाउस गैस को तो छोड़ दीजिए, वो दूसरी समस्या क्रिएट करती है। आप अगर एक बंद जगह में, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी दिल्ली में एक केस हुआ था, क्योंकि कोई चीज अगर करंट अफेयर में होती है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करके घुमा फिरा के पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी लाइक मकर संक्रांति वाले दिन की न्यूज है, दिल्ली में फ्लैश हुई थी, ठीक है, कि एक फैमिली थी उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई। एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट डेथ, कि ठंडी का टाइम चल रहा है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्पेशली गांव में क्या करते थे कि आपको पता है गांव के बाहर बहुत सारी जगह होती थी, स्पेशियस जगह होती, तो वो लोग अपना रात में उसे पैरा बोलते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पराली पैरा, मतलब जो भी उनको मिल गया, घास फूस मिल गई, लकड़ी मिल गई, कोयला मिल गया, उसे जला के वो अंगीठी जला के आग तापते हैं, ठीक है, वन वे टू बीट द कोल्ड, ठीक है। शहरों में दिक्कत क्या है कि देखिए सबके पास रूम हीटर्स अवेलेबल नहीं है, सब लोग बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं कि अपना AC वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, रूम हीटर क्रिएट कर लिए, तो बहुत से लोग एक पुरानी हैबिट चली आ रही है कि अंगीठी जला के बैठ जाएंगे, ठीक है। या आपने कुछ भी मूवीज देखी हुई, कहीं पर आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में होता है कि वो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, रूम हीटर पहले अवेलेबल नहीं होते थे तो वो घरों में ही चिमनी लगा लेते थे, मतलब साइड में जैसे आप, ये आपका कमरा है तो साइड में ऐसे करके वो ओपनिंग दे देंगे, वहीं पे लकड़ी वकड़ी जला के ऊपर चिमनी बनी हुई थी, धुआं निकल जाता था। लेकिन ये चिमनीज, होम चिमनीज, अंगीठी आपके लिए खतरनाक क्यों है, कि अगर आप एक बंद जगह पे रह रहे हैं जहां लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है और वहां पर अंगीठी जला के बैठ जाइए, सुलगा के बैठ जाइए, तो कोई चीज जल रही तो धुआं तो फेंकेगी ही, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा। और अगर मान लीजिए ओपन जगह है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर आ रहा है। लेकिन बंद जगह पे अगर आप लकड़ी जला रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज अंगीठी टाइप की चीज जला रहे हैं, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्निंग हो रही है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ध्यान रखिएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए बहुत एक्सट्रीमली पॉइजनस होती है। क्यों पॉइजनस होती है, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है, आपको पता ही आपके ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक आपका RBC होता है, एक आपका WBC होता है, एक आपके प्लेटलेट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द लिम्स एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर, मेजर कंपोनेंट ये होते हैं। तो आपके जो RBC हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों रेड कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी में आपके लंग्स जो होते हैं बेसिकली ऑक्सीजन को सूंघते हैं, आप हवा सांस लेते हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं एटमॉस्फेयर से कोई नाक में फिल्टर लगा सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, यू आर इनटेकिंग और इनहेलिंग द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं। तो ये जब ऑक्सीजन रिच एयर आपके फेफड़ों में जाती है, अंदर जाती है, फिर लंग्स के थ्रू आपको पता है हार्ट ब्लड पंपिंग कर रहा है, वहां से ऑक्सीजन और एयर वगैरह ये सब सूंघ रहा है, आपकी बॉडी में जा रहा है। तो जो हीमोग्लोबिन आपकी ब्लड में होता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है, बॉडी टिश्यूज को हर जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और कहीं किसी रीजन की वजह से अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है तो वहां आपको पता है क्या होता है, अपने हाथ को ऐसे पकड़ के थोड़ी देर देख लीजिए, फिर आप कहते हैं खून की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, तो मेरा हाथ शून्य पड़ रहा है। खून की सप्लाई की बात नहीं है, खून तो पहले से वहां प्रेजेंट था, बात यह है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे शून्य पड़ सकता है थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म में बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होता है। अब अगर मैं कहूं, इमेजिन करिए कि आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ यू आर इनहेलिंग द एयर दैट इज रिच इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। एफिनिटी का मतलब होता है किसी से प्यार करना, चिपकना किसी से। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन से चिपकता है और एक बहुत पॉइजनस तत्व बनाता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज आई थी कि बंद कमरे में 4 लोगों की डेथ क्यों हुई, क्योंकि वो अंगीठी जला के बैठे थे, सब कुछ बंद था, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली। तो यहां उनकी मौत का कारण कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई भी ऐसी चीज न्यूज में आती है तो थोड़ा सा बस नजर रखिएगा। एनीवे हाँ, तो
हम यहाँ पर आते हैं, हम बात ओजोन की कर रहे थे। तो ओजोन जो होती है जब स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है तो वहां पर एक लेयर बना रही है, अल्ट्रावायलेट रेस को रोक रही है। लेकिन यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है तो वो क्या बना रही है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस पे चल रहे थे तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेज होती हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है एंड दे आर हैविंग दिस हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। कोई भी चीज अगर डेंस होगी तो गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अब आप कह दो कि ठीक है यार एब्जॉर्ब करी, हमें क्या लेना देना, लेना देना होना चाहिए आपको, ठीक है। ठंडी में तो मजा आता है कि कोई चीज गर्म हो रही है। दिक्कत समझिए क्या है कि जब आपका एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर में क्योंकि हम लोग सर्वाइव करते हैं, एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जिसमें हम लोग सर्वाइव करें वो ट्रोपोस्फियर है। अगर ट्रोपोस्फियर में पॉल्यूटिंग गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है, ओजोन है, इसकी संख्या बढ़ने लगेगी, ठीक है, इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एयर आपके पास है ये क्या हो गई, ग्रीन हाउस गैस, इनको ग्रीन हाउस गैस बोला गया ना, इनकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, यानी कि ये सनलाइट से ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर आपके आसपास का वातावरण गर्म ज्यादा हो गया तो दिक्कत क्या होगी, इस ट्रोपोस्फियर में सिर्फ हवा नहीं होती है, यहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी होते हैं, तो आपको पता है दिक्कत क्या होगी, ग्लेशियर मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब वो आपके लिए दिक्कत क्यों करेगा कि यूपीएससी ने प्रीमियर क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या विच विल बी द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसके अगर आप ऑप्शन सुनेंगे तो बड़ी हंसी आ जाएगी, क्योंकि बड़े जैसे लोग कहते हैं प्रीमियर है बड़ा जिस्ट में पढ़ो, जिस्ट की बात नहीं है कि यूपीएससी के प्री के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ती है, आपको बहुत कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंपैक्ट सोचने पड़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन 5 से 8 बार उस पर क्वेश्चन पूछा गया। कभी वो पूछ लेंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हीटिंग ऑफ योर ग्लोब, आपका होम तो ग्लोब ही है ना, तो ग्लोब की वार्मिंग हो रही है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हो क्यों रही है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रही है, और ग्रीन हाउस रिलीज क्यों हो रही है, आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हो रही है, कुछ नेचुरल एक्टिविटी की वजह से भी होती है। जैसे मैंने कहा आपसे कि मीथेन वगैरह निकलती है, तो मीथेन सिर्फ आप थोड़ी ना जनरेट करते हो, राइस पैडी होता है, मतलब जहां पे चावल की खेती होती है, पैडी कल्टीवेशन होता है, वहां से भी मीथेन जनरेट होती है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक बार ये यूपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि मीथेन नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह निकलते रहते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स वगैरह निकलते रहते हैं, ये भी सब ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैस होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पैडी फील्ड से मीथेन निकल रहा है, साथ साथ में कुछ एंटी माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी फार्ट होती है जो, ठीक है, उस फार्ट तक में मीथेन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आंट्स होती हैं, जो टर्माइट्स होते हैं, उनकी बाम्बी होती है ना, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द बिग सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मीथेन जनरेशन, वहां से मीथेन, क्योंकि उनकी फार्ट FART वाला ही, ठीक है, आप सही समझ रहे हैं, उनकी फार्ट्स में मीथेन पाई जाती है, तो इतने भारी मात्रा में जब वहां टर्माइट्स रहेंगे तो खूब सारी फार्टिंग करेंगे, सीधी बातें, खाएंगे पिएंगे तो, ठीक है, उसी फार्टिंग से मीथेन जनरेट होती है, यानी नेचुरली भी मीथेन जनरेट होती है और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि आपकी ह्यूमन एक्टिविटी से भी जनरेट होती है। तो ग्रीन हाउस गैस दोनों सोर्सेज से आती हैं, इनका इंपैक्ट क्या था, ग्लोबल वार्मिंग। अब जो क्वेश्चन यूपीएससी प्री ने पूछा था इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन थे मेल्ट डाउन ऑफ द ग्लेशियर, ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब आपका वातावरण गर्म होगा तो जो ग्लेशियर है यानी जो आइस रखी है कैप्स पे, आपको पता है ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर कुछ नहीं होते हैं, जमा हुआ पानी है, ठीक है, जैसे जैसे वातावरण में गर्मी पड़ती है तो वो ग्लेशियर्स पिघलते जाते हैं और वहीं से पानी पिघलकर नदी के रूप में नीचे बहता जाता है। अब इमेजिन कर लीजिए एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ गई तो जो ग्लेशियर है उनके पिघलने की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी, तो जो ग्लेशियर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए 50,000 साल तक नदी के रूप में बहने वाले थे, अगर आप उसको ज्यादा तेजी से गर्म करोगे तो वो 10,000 साल में खत्म हो जाएंगे, हो सकता है 5,000 साल में खत्म हो जाए। तो अगर पानी ऊपर से बहेगा तो नदियों का पानी सूख जाएगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा से कहां बसा है, ठीक है, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, ठीक है, कहीं पर भी सिविलाइजेशन है हमेशा नदियों के किनारे बसा है। उसका रीजन क्या था कि आदमी को खाना 4 दिन ना मिले चलेगा, लेकिन बिना पानी के वो 3 घंटे नहीं रह सकता, 4 घंटे नहीं, एक दिन आप नहीं सर्वाइव कर सकते बिना पानी के। निर्जरा व्रत वाले तो चलो रह लेते हैं जैसे तैसे, ठीक है, ठंडी में भी चल जाएगा पूरा दिन बिना पानी के, गर्मी में सेटिंग हो रही, पानी नहीं मिल रहा है, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर, और नदियों में पानी है। अब आप कहते हो हमारे क्या, हमारा तो आरोक पानी आता है, अरे आरोक पानी आता है तो कहीं से तो आ रहा होगा, उसका सोर्स तो होगा, कहां से आता है, दिल्ली वाले सप्लाई करते हैं, कहां से पानी लेते हैं, दिल्ली में चलिए ठीक है वाटर टेबल नहीं है, ठीक है, नीचे का पानी चला गया, हरियाणा से पानी ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इंडिया की कुछ सिटीज हैं जहां पर प्रेडिक्शन है कि 2040 से 2050 के बीच में अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अंडरग्राउंड वाटर टेबल क्या होती है कि जो जैसे एटमॉस्फेयर के सेग्रीगेशन हमने कर रखे हैं तो वैसे सॉइल के भी होते हैं, ठीक है, आपके नीचे जो पृथ्वी है उसके नीचे कई सारे लेयर्स होते हैं, तो जो सेडिमेंट्री बेसिन होता है, नीचे का बेसिन होता है, जैसे मिट्टी है उसके नीचे पत्थर दबे हुए, उसके नीचे सेडिमेंट्री रॉक बेसिन है, उसके नीचे बहुत सारा वाटर रिजर्वायर होता है, मतलब बारिश हुई, पानी भरा भीगा तो सब नीचे ही तो जाता है, तो ये पानी जो है लेयर्स की फॉर्म में, और इवोल्यूशन के टाइम से, अर्थ का जब से जियोलॉजिकल इवोल्यूशन है तब से पानी नीचे है हमारे, ठीक है, वहीं से तो आप समझते हैं स्प्रिंग्स निकलती हैं, सब कुछ निकलता है, लेकिन होता क्या, हमने उसको इतना कंजप्शन उसका बढ़ा दिया है, और सबसे ज्यादा कंजप्शन कहां से बढ़ा था,
बुरा मानने की बात नहीं है, बट खेती से, एग्रीकल्चर से। आप ये कह दिए तो क्या खेती बंद कर दें? अब एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर में खेतों में पानी कहाँ से आता है? हैवी मात्रा में आपको पानी चाहिए, चाहे वो शुगर केन कल्टीवेशन हो, चाहे आपका पैडी कल्टीवेशन हो, राइस कल्टीवेशन हो। तो रूरल एरियाज में आरओ का पानी तो यूज नहीं करोगे देने के लिए, इतने हैवी मात्रा में चाहिए, तो हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं। और ट्यूबवेल क्या करते हैं, जमीन से ही तो वाटर एक्वायर से ही तो पानी निकालता है, जो सेडिमेंट्री बेसिन का पानी है। तो जब भारी मात्रा में एग्रीकल्चर होगा, कब से चला रहा है खेती बाड़ी, कब से हो रही है? 10,000 BC से हो रही है, ठीक है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो था 10,000 BC मान के हम लोग चलते हैं, वहां से पहला एग्रीकल्चर की खेती के हमको साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आप सोचिए कितने सालों से खेती होती आ रही, कितना पानी हम सोच चुके हैं, निकाल चुके हैं, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो वाटर टेबल रिसीड कर रही होगी, ठीक है। और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी निकालते हैं। जैसे अब दिल्ली में भी रहते हैं तो यहाँ बोरिंग वाटर यूज करते हैं, सीधी सी बात है। किसी भी सिटी में रहते हैं दिल्ली में तो तभी वाटर टेबल बहुत नीचे, बोरिंग बहुत डीप करनी पड़ती है। छोटी सिटीज में चले जाइए तो वहां पर ये, जैसे यहाँ दिल्ली सप्लाई आता है, वहां वो छोटे शहरों में नहीं आता है, तो वहां पर सबने अपने हैंडपंप लगा रखे हैं, सरकारी नहीं लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये जो अर्थ के नीचे का वाटर है, वहीं का पानी तो यूज कर रहे हो, इतना कंज्यूम कर रहे हो आप पानी, गाड़ी धोने में यूज करो, बर्तन धोने में यूज करो, वाटर रिसाइकलिंग कर नहीं रहो, तो कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा कि जमीन के नीचे से पानी खत्म होने लगेगा। तो यही रिपोर्ट आई थी, ये ध्यान रखिएगा कि चेन्नई का नाम उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था, ठीक है, कि चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, कुछ ऐसे मेट्रोपॉलिटन है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, वाटर कंजप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पानी जो है हम इतना ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं कि वाटर टेबल रिसीड करी। अब जब नीचे पानी सूख जाएगा, नीचे से पानी नहीं मिलेगा, तो आप पानी के लिए किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? वही है कि कहीं से आ रहा है सप्लाई, जैसे दिल्ली वाले तो हरियाणा पे डिपेंडेंट हैं, या कहीं बहुत यूपी से थोड़ा बहुत आ गया पानी, हरियाणा से बेसिकली यहाँ का आता है, या हिमाचल प्रदेश से हमने पैक कर लिया कि चलो वहां से दे दो। तो हिमाचल वाले मतलब और हरियाणा वाले अपने लोगों को भी पानी पिलाएं, अपनी भी खेती करें, और दिल्ली को भी पानी दें। और दिल्ली में पॉपुलेशन कितना आपको पता ही है। तो ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए खतरा होता जा रहा है, ठीक है। जब पानी रिसीड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आप किस पे डिपेंडेंट हुए? पानी नहीं, 2-3 दिन दिल्ली में नहीं आता है, क्या हालत हो जाती है, ठीक है। आप समझ जाइए बात को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वाटर टेबल पे हम क्यों गए थे? वी वर टॉकिंग अबाउट ओजोन, बट हाँ, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा, अगर घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सब्जेक्टिवली समझ लीजिए, प्री में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर मेल्टडाउन होगा, ग्लेशियर मेल्टडाउन होगा तो नदियों में जो पानी है, पहली चीज क्या होगी, बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे। तो इनिशियली क्या होगा कि रिवर्स का लेवल बढ़ जाएगा। पहले क्या होता है, ग्लेशियर से धीरे धीरे पानी पिघल रहा है, रिवर्स में नॉर्मल फ्लोइंग हो रही है वाटर की, ठीक है, नॉर्मल रेट से बह रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने रहते हुए क्या किया, ह्यूमन हैबिटेशन को बहुत ज्यादा इंक्रोच कर दिया, जहां पाते हैं वहां पे घर बना के बैठ जाते हैं। मतलब जो रिवर बेड्स होते हैं, नदियों के आसपास का एरिया होता है, हमने वहां भी खेती बाड़ी करके, क्योंकि आपको पता है जो जायद की फसल होती है, जायद की जो खेती होती है, वो ज्यादातर वही आपका इधर होती है, आपकी मान के चलिए जून जुलाई अगस्त इसी मौसम में कही जाती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रिवर्स हैं उनके आसपास ही ये खीरा, ककड़ी, यही सब तो उगता है। कई बार क्या होता है, नदियों का पानी जब सूखने लगता है, कम रिसीड हो जाता है गर्मी के टाइम पे, तो वो बहुत सारा एलुवियल सॉइल ऊपर फेंक देती है, स्पेशली आप यहाँ यूपी में देखेंगे, ठीक है। तो लोग सोचिए नदियों के बीच में घुस के, मतलब आई बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे शारदा रिवर बहती है, तो वहां पर तो मैंने ये भी वॉक किया जब भी मैं घर जाता हूँ कि जब वहां पे ब्रेडेड चैनल्स में बहने लगती नदी, मतलब इमेजिन कर लीजिए अगर नदी ऐसे बह रही है तो वाटर लेवल ऐसा हो जाता है कि नदी के बीच में छोटे छोटे से रिवलेट्स बहने लगते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, एलुवियल सेडिमेंट बहुत सारा डिपॉजिट हो जाता है। और जो एलुवियल सेडिमेंट होती है, बेसिकली इट इज द रिजल्ट ऑफ सिल्टेशन। नदी जब ऊपर से आती है, अपने साथ आती है, तो बहुत सारी धूल मिट्टी और ये सारा खादर और बंजर जितना भी सॉइल होता है, बंगर वगैरह सब लेती आती है, तो बहुत कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी में लोग तरबूज, खीरा, ककड़ी जो भी पाते हैं, जायद की फसल सब उगा लेते हैं। अब इमेजिन कर लिया अचानक से ग्लेशियर पिघलने शुरू हुए तेजी से, रिवर्स में फ्लो एकदम से बढ़ा, तो सबसे पहले तो इन लोगों को बंजारा कर देगी, उजाड़ देगी पूरा, ठीक है। फिर वो रिवर बेड को एक्सीड करके इधर इधर आना शुरू करेगी, रिवर बैंक्स में इंक्रोच करेगी, यानी कि देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग इन द रिवर्स। जब ग्लेशियर मेल्ट डाउन होगा तो ये मत सोचिए ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहा, पानी खत्म हो गए, खत्म तो बाद में होगा, पहले तो बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, एकदम से रिवर का लेवल बढ़ेगा, तो फ्लडिंग सबसे बड़ा होगा। जैसे आपको पता है, जो लोग बिहार से हैं, एक सीमांचल रीजन है बिहार में, ठीक है, ज्योग्राफी में आता है। सीमांचल में 4 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं, उनके नाम थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, नहीं तो खुद चेक कर लीजिएगा। तो इट इज प्रोन टू फ्लडिंग, क्योंकि ये कोसी रिवर बेसिन में आते हैं। जो कोसी रिवर है वो अपना कोर्स इतनी तेजी से बदलती रहती है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन, जियोलॉजिकल रीजन, कि उसको सौरव बिहार कहा जाता है, जैसे दामोदर को आपका सौरव बंगाल कहा जाता है ना। तो बात क्या है कि सीमांचल रीजन इज प्रोन टू फ्लड्स, और फ्लड्स क्यों होते हैं वहां पे, शिफ्टिंग ऑफ कोसी रिवर। तो सेम वे में इमेजिन कर लीजिए कि अगर किसी रिवर में अचानक से भम भम पानी बहना शुरू हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लडिंग बढ़ेगी। फिर आने वाले टाइम पे एक बार ग्लेशियर, जब ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो गया तो एकदम से उन्होंने पानी रिलीज कर दिया, तो आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगा, नदियां सूखनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा कॉन्सिक्वेंस जो उन्होंने ऑप्शन में दिया था, इट वॉज द राइज इन द सी लेवल, ठीक है। अब कई लोग तो जो
इंटरलिंक करके पढ़े हैं या पहले से पढ़े वो समझ जाएंगे, लेकिन कई अगर आप नोवाइस हो बिल्कुल शुरू में किया तो आप सोचोगे यार ग्लेशियर कहाँ है, बीच में है इंटीरियर में, नदियां कहाँ है, बीच में बह रही हैं, तो सी लेवल कैसे राइज होगा भाई? जब ये नदियां बहती हैं तो कहीं ना कहीं तो जाती होंगी। आपने बार बार पढ़ा है कि द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर नाइल है, ठीक है, नील नदी है, नील नदी ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है आपकी, आपको पता ही है, ठीक है, कहाँ से होती है? जो आपका लेक विक्टोरिया है उसके ऊपर का हिस्सा है, 2-3 माउंटेन पड़ते हैं वगैरह, वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर वो आपकी कौन सी होती है? ब्लू नाइल है, व्हाइट नाइल, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक आपकी इधर इजिप्ट साइड से होती है, फिर दोनों खार्तूम पे जाके मर्ज करती हैं, नाइल नाम से बहती हैं। ओवरऑल लेंथीएस्ट रिवर है वर्ल्ड की आपके, ठीक है। तो ये तो हो रहा है, इमर्ज कहां से हो रही है, जा कहां पे रही है? मेडिटेरियन सी में जाके घुस जाती है, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पड़ता है उसके पास में, वहां ड्रेन करती है। नदी में दो चीजें होती हैं, एक तो जहां से इमर्ज कर रही है, एक जहां पे ड्रेन कर रही है। सेम वे में अगर आप इंडिया में आएंगे तो इंडिया में अगर आप देखेंगे जो तिब्बत वाला रीजन है, नेपाल के ऊपर का रीजन है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो 3 मेजर रिवर बेसिन वहां से निकलते हैं। एक निकलता है इंडस, ठीक है, इंडस रिवर बेसिन, उसके थोड़ा सा नीचे से सतलज आपकी निकलती है। इंडस और सतलज ये दोनों जो रिवर हैं इनके सोर्स क्या हैं? राकाज और मानसरोवर लेक। मानसरोवर वही आपका कैलाश वाला, ठीक है। राकाज और मानसरोवर जो आपके लेक्स पड़ते हैं वहीं से इंडस और सतलज दोनों आसपास से निकलती हैं। और जस्ट उसके थोड़ा सा इधर ईस्ट में पड़ता है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, वहां से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल रही है, ठीक है। गंगा जो है आपकी वो उत्तराखंड से अलग अलग सोर्सेस से निकली, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, आगे चल के निकले भागीरथी, अलकनंदा से मिल रही। ओवरऑल ये पूरा हिमालयन रीजन ही तो पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इधर राकाज लेक है, मानसरोवर लेक है, वो भी हिमालयन रीजन में आता है, भले वो इनर हिमालयस में आता है, ट्रांस हिमालयस में आता है, ठीक है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है तो वो हिमालय रेंजेस का ही पार्ट ना, और गंगेटिक भले ही उत्तराखंड में निकलती, लेकिन ये भी हिमालय रेंजेस ही आई, भले ये आउटर वाली आई हैं, ठीक है। तो ये सोर्स है रिवर्स का। अब ये जा कहां रही है? इंडस रिवर इधर से बहती हुई जाती है, कहां गिरती है आपकी, आपको पता ही, उधर अरेबियन सी में होती, पाकिस्तान से बहते हुए। गंगा आपकी पूरी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इधर कवर करती हुई जाती है और आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी इनफैक्ट आपकी उधर तिब्बत से निकलती है, घूम के आती है, और फिर वहां से उसको एक कर्व मिलता है, क्रेसेंट टाइप का, मून टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। फिर वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में आती है, और फिर वो गंगा के साथ मिलकर गंगा पद्मा मेघना सिस्टम बनाती है। गंगा को पद्मा नाम से बोलते हैं, जमुना नाम से बोलते हैं, और उसको पद्मा नाम से पद्मा मेघना करके सिस्टम ये बना देती है, और फिर वो एट द एंड बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यानी कि अगर नदियों में बहुत तेजी से पानी आ रहा है तो एट द एंड ये जा तो समुद्र में ही रहा है, धीरे धीरे जा रहा है तो सी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से जाएगा तो सी लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। चौथा ऑप्शन यही था, तीसरा तो था सी लेवल का बढ़ना, और चौथा ऑप्शन ये था, इससे सबसे बड़ा खतरा जो है आइलैंड नेशंस को है। आइलैंड नेशंस कौन से हैं आपको पता है, ये इंडियन ओशन को देख लीजिए। अब क्यों आइलैंड नेशन न्यूज में आ जाते हैं, आपको पता है मालदीव से हमारा झगड़ा किस बात पे हो गया, ठीक है। इंडिया आउट मूवमेंट चला रहे थे, मोदी जी लक्षद्वीप पहुंच गए, लक्षद्वीप टूरिज्म प्रमोट करने लगे, उसने कह दिया चाइना वालों से तुम लोग आओ हमारे यहाँ पे। तो मालदीव आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? मालदीव से रिलेटेड कोई न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 नॉट वेरी श्योर अबाउट द ईयर, अभी मुझे याद भी नहीं है, बट आप थोड़ा सा देख लेना उसको, ठीक है। उन्होंने अपनी कोई कैबिनेट मीटिंग अंडर वाटर की थी, ठीक है। अंडर वाटर मतलब समुद्र के, क्योंकि आइलैंड छोटा सा, मतलब कई कई छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको आर्किपेलागो बोलते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी कोई कैबिनेट मीटिंग सी लेवल के नीचे की थी, समुद्री सतह पर बैठे थे, और उसके बाद में वहां मीटिंग की। वो दुनिया को संदेश देना चाहते थे, वी आर ऑन द एक्सटेंट ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, हम लोग खत्म होने के कगार पे हैं। क्योंकि देखिए आप लोग तो रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली तो अरावली रेंज के अपर पार्ट पे पड़ता है, ठीक है, जो इंटीरियर से तो ऊंचाई पे, लेकिन जैसे जैसे आप कोस्ट की साइड बढ़ते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। कोस्ट की तरफ क्या होता है, तो जैसे ही सी लेवल राइज होगी तो जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, और आपका इधर आंध्र प्रदेश वाला इधर का रीजन हो गया, या इस साइड में आप देखेंगे मुंबई है, तो ये किस चीज के लिए प्रोन है? जैसे सी लेवल बढ़ेगा ये सब डूबने लगेंगे, और ज्यादातर फिशरमैन कम्युनिटी है या कोई भी ऐसे रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, कोस्टल कम्युनिटी हैं जो कि फिशिंग पे बेसिकली डिपेंडेंट हैं, ये लोग कोस्ट पे ही रहना पसंद करते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तो आपकी कंट्री की बात है। अब इमेजिन कर लीजिए आप एक आइलैंड कंट्री है, जैसे जापान है फॉर एग्जाम्पल, या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल उधर इंडोनेशिया की आइलैंड है। आपको पता है इंडोनेशिया की कैपिटल जो थी उसको शिफ्ट करने का रीजन क्या था? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हुआ करती थी, ठीक है, और अभी उसको शिफ्ट करके उसकी कैपिटल चेंज कर दी गई। कैपिटल जो चेंज की गई उसका नाम सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में डालिए या अपने नोट में लिख लीजिए। उसकी कैपिटल शिफ्ट करने का क्या रीजन था? रीजन ये था कि इसकी जो इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल जकार्ता थी ये फ्लडिंग के लिए प्रून हो गई थी। फ्लडिंग मतलब ये होता है कि कोस्टल जो वाटर रेस कर रहा था ये डूबने की कगार पे थी, तो उन्होंने पहले अपनी कैपिटल को स्विच कर लिया। इमेजिन कर लीजिए इंडिया की कैपिटल चेन्नई या कोई भी ऐसी कोस्टल स्टेट हो विच इज प्रोन टू सी फ्लडिंग या सुनामी, तो हमको अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। तो मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स और ऐसे कई सारे आइलैंड कंट्रीज हैं
जो आप इमेजिन करिए कुछ ही मीटर समुद्री सतह से ऊपर है, तो अगर थोड़ा सा भी सी लेवल, मतलब आप समझिए 1 मीटर भी सी लेवल राइज हो गया तो ये पूरा आइलैंड डूब जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से ग्लोबल वार्मिंग से यहां तक कॉन्सिक्वेंस होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ओजोन की। तो अब ये आप ध्यान रखिएगा कि ओजोन जो 90% है स्ट्रेटोस्फीयर में जब तक है तब तक आपके लिए यूजफुल है, लेकिन जो 10% ऑफ ओजोन है दैट इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर वाली यूजफुल है, अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक कर रही है, लेकिन जो ओजोन आपके यहाँ ट्रोपोस्फीयर में पाई जा रही है ये आपकी हार्मफुल हो जाती है। हार्मफुल इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हाँ यहाँ पे हो गया था। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, तो ये आप समझ ही गए मेटाजेनोमिक्स। तो अब हम अगले पे स्विच करते हैं, पैंटिया टैगोरिया, पैंटिया टैगोरी। ठीक है, साइंटिफिक नेम से आपको प्रोनाउंस करना नहीं सीखना, आप गलत भी बोलेंगे फर्क नहीं पड़ता, बस वहां ऑप्शन से ही टिक मारिएगा। तो अब इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस रखिए, थोड़ी नजर मारिए कि मैंने कहा नहीं 40% ऑब्जर्वेशन रखिए, कहीं पर भी ये इस टाइप का टर्म आपको मिले, कोई भी साइंटिफिक टर्म ऐसा न्यूज में रहा है तो उस पर फोकस आप इसलिए रखिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि दिस पर्टिकुलर टर्म वॉज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको ये टैगोरी दिख रहा है, तो टैगोरी सुन के कुछ याद आ रहा है? टैगोर से रिलेटेड, टैगोर से रिलेटेड दो चीजें याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, स्पेशली इस साल के एग्जाम के लिए? एक क्वेश्चन यहाँ साइंस एंड टेक से बन सकता है और एक क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर पे चला जाएगा। आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइप का कॉन्सेप्ट है, जब हम करंट अफेयर की क्लास लेंगे तो वहां डिटेल में इसको देख लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नाम की एक जगह बनाई थी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप का, ठीक है, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में उभरा, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वहां का चांसलर होता है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो तो आपको पता ही है, प्रेसिडेंट या गवर्नर उनके चांसलर्स रहेंगे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ही इज द चांसलर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की, उसको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस अभी सितंबर 2023 में मिला था। दो जगहों को मिला था, एक तो आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को और दूसरी थी होशला के जो टेंपल हैं, और इससे पहले 2021 में दो साइट्स को मिला था। ठीक है, एक गुजरात की थी आपकी और दूसरी आपकी एक समथिंग काकातीय डायनेस्टी का एक टेंपल था। ठीक है, अब उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा, बस ध्यान रखिएगा। मैंने कहा साइंस एंड टेक के लिए टैगोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुआ क्या है, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम कोलकाता विश्व भारती हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया व्हिच हैज नेम्ड पैंटिया टैगोरिया इन होमेज टू द नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक होमेज देने के लिए, कई बार होता नहीं आप देखते हो कलाम को होमेज देने के लिए उन्होंने कोई मतलब किसी उपग्रह का नाम कर दिया या कोई ऐसी स्पीसीज मिली, कलाम के नाम पे भी कई स्पीसीज को रखा गया। ठीक है, कई बार इंटरनेशनल बॉडीज भी देती हैं, कई बार हमारी नेशनल बॉडीज भी देती हैं। तो जब भी कोई नई स्पीसीज मिलती है तो कभी ना किसी कोई रिवर्ट बंदा रहा होता है, उसके नाम पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो बस ये याद रखिएगा, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, दे हैव फाउंड अ न्यू स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर को होमेज देने के लिए कर दिया। तो बस इतना ध्यान रखिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, दिस पर्टिकुलर टर्म वाज इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू अ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक। अब यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि ये बैक्टीरिया यूजफुल क्यों है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि झरिया की कोल माइन से मिला था। अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया, किसी ने पढ़ने वाले बना दिया, तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि झरिया कोल माइन जो थी न्यूज में थी रिसेंटली, क्यों न्यूज में थी, उसे भी छोड़ दिया। झरिया कोल माइंस की लोकेशन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस बैक्टीरिया के बारे में यह है कि द यूनिक प्रॉपर्टीज बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। आपको पता है कोई भी इस टाइप का बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजनस एक्टिविटी करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को टैप करता है, जिसका यूज प्लांट अपने फूड प्रोडक्शन में करें। ठीक है, तो इसका यूसेज ये है, it not only solubilizes the potassium but also replenishes the nitrogen and solubilizes. This bacteria marks a significant step toward fostering environment friendly agriculture method. तो बैक्टीरिया एग्रीकल्चर मेथड्स वगैरह के लिए बड़ा यूजफुल है। बस इंपॉर्टेंट बस यही याद रखिएगा। ठीक है, तो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन अवर नेक्स्ट सेशन। इतना जितना भी पढ़ा है इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को एक बार रिकैप्सुलेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।